चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.4 ओम्स लॉ। वैसे ओम्स लॉ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ओम्स लॉ was discovered by a German scientist named as G.S. Ohm. It was George Simon Ohm in very late 1828, and he found the relation between the current passing through a conductor with the potential difference. Now, how the relation was, let me explain you. Suppose here is the conductor. Right now, I am showing a conductor of cylindrical shape. This is a solid conductor. And now, suppose a battery of, let us say, V volt is connected with this conductor like this. Here is the battery. This is positive, negative, positive, negative. This one is positive and this is negative. So obviously this terminal, the left terminal of the conductor will become positive and the right terminal will become negative. And if the EMF of this battery is, let us say, V, then it is quite understood that the potential difference between two ends of this conductor will be equal to V. I am saying the potential difference will be V. And obviously here some current will pass. You know that the conventional current is always drawn from positive to negative. So I am drawing this current I from positive of the battery to the negative of the battery. Now here G.S. Ohm said, which is known as Ohm's law, that this potential difference will be always proportional to the current I. That means more the current, more the potential difference will be there across the conductor. Here we can put a proportionality constant, and that proportionality constant is R. So we can write V is equal to Ri equation, or also you can write V is equal to IR equation. Now this proportionality constant R is known as resistance of the conductor. R is known as resistance of conductor. The SI unit of resistance R is this symbol. This symbol is known as ohm. In fact, the real name of this symbol is omega. This symbol is known as omega, but here for resistance it is known as ohm. So whenever you write any resistance, you will write with a unit ohm. This resistance R depends on two factors. Let me write dependency of resistance is one material of the conductor. And second is dimensions of the conductor. So
the resistance depends one thing, that is material of the conductor. Obviously different material have a different tendency to resist the current. That's why resistance depends on the material of the conductor. And second is, it depends on the dimension of the conductor. We can prove by a simple experiment that the resistance R is proportional to the length of the conductor, and resistance R is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. In short, we can write R is proportional to L upon A. Don't forget, L is the length of the conductor and A is the cross sectional area of the conductor through which the current is about to pass. For example, consider this left figure of the conductor. Here the length of the conductor is, let us say, L, like this, and the cross sectional area of the conductor is, let us say, A, like this. Then R is proportional to length. That means more the length, more the resistance will be. And R is proportional to 1 upon A. That means more the cross sectional area, less the resistance will be. This relation we can prove by one experiment, and that experiment we are going to do now. चलिए अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये समझेंगे कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का उसकी लेंथ और उसके एरिया के साथ, यानी कि उसके डायमेंशन के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए पहले ये तीनों फिगर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक कंडक्टिंग स्लैब है जिसकी लेंथ है L और एरिया है A। यहाँ पे L लेंथ वाले दो कंडक्टर ऐसे सीरीज में रखे हुए हैं और सभी का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही है। और यहाँ पे ये एक कंडक्टर हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि इसकी लेंथ L है, लेकिन अब ये दोनों एरिया A/2 है। ये ऊपर का जो सिंगल कंडक्टर है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हाफ हो जाएगा, A/2। और अब इसको बैटरी की मदद से कनेक्ट किया गया है सपोज की, और मैं पहली फिगर ले रहा हूँ। सपोज कि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है करंट I। मैंने कहा आपको कि इसको किसी पावर सप्लाई से या किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है और इसमें से करंट पास हो रहा है I। तो ऐसे में इसके दोनों टर्मिनल के बीच में आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सपोज कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो है V। अभी इस स्लैब के दोनों एंड के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V। तो आप जानते हो कि इसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू RI, याद है ना। और इसमें से फिर हम रेजिस्टेंस R के लिए लिख सकते हैं V/I। याद रहे कि इसमें मैंने जो R लिखा है वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब ये दूसरी फिगर देखिए, इसमें दो स्लैब सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, दोनों की लेंथ L है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का A है। और सपोज कि इसको भी किसी बैटरी या पावर सप्लाई से जोड़ा हुआ है और इसमें से भी सपोज के I करंट पास हो रहा है, ठीक है। करंट कितना पास हो रहा है, वही जो पहले के केस में हमने लिया था I। बट ऐसे में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जरा ध्यान से देखना, इस पहले स्लैब के दो एंडिंग पॉइंट्स के बीच में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो V मिलेगा। और यहाँ भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि ये जो दूसरा कंडक्टर है उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा V। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये पहली फिगर में
वही हो रहा था। ये पहली फिगर में आपको एल लेंथ का ये कंडक्टर दिया हुआ है और इसमें एरिया है ए, करंट पास हो रहा है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वी। तो अगर हम इस पहले कंडक्टर के बारे में सोचें जिसमें से आई करंट पास हो रहा है, तो उसकी भी लेंथ एल है, एरिया भी उसका ए है और आई करंट पास हो रहा है, तो उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वी। ऐसा ही दूसरे में भी है, इसकी लेंथ भी एल ही है, इसका एरिया भी ए ही है, तो इसमें भी करंट जा रहा है वही आई जितना, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी जितना ही मिलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो ये दोनों के सम जितना हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हो जाएगा 2v। समझ लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे लंबे स्लैब के दोनों एंडिंग पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 2v, जिसमें से करंट जा रहा है I जितना। तो यहां भी हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस 2v इजकल टू, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको कुछ R1 ऐसा नाम दे देते हैं हम, तो R1 इंटू आई। देखिए मैंने इसमें और कुछ नया नहीं किया, मैं सिर्फ इस टोटल रेजिस्टेंस को, यानी कि इस पूरे लंबे स्लैब के टोटल रेजिस्टेंस को R1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये R1 मैंने लिखा। आप देख रहे हो कि पोटेंशियल तो 2v है और करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो आप लिख सकते हो कि 2v इजकल टू R1I एज पर ओम्स लॉ। अब इसमें से अगर मैं रेजिस्टेंस R1 को सब्जेक्ट बना लूं तो ये मुझे मिल जाता है 2v अपॉन I। लेकिन v अपॉन I यानी क्या है, R है, तो ये हो जाएगा 2R। तो ये क्या मिल रहा है आप देखिए, R1 इजकल टू 2R, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है उससे ये रेजिस्टेंस डबल है। क्यों डबल है भाई, आपने क्या चेंज किया, आपने सिर्फ लेंथ डबल ली। इसकी लेंथ के कंपैरिजन में इस स्लैब की लेंथ डबल है, तो रेजिस्टेंस आपको डबल मिल रहा है। बाकी एरिया तो सेम है, करंट भी सेम है, सिर्फ लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। इसका मतलब कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। ये पहला रिजल्ट मिल गया। अब आप तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में मैंने आपको आगे ही समझाया कि आप स्लैब ये जो पहला वाला है ऐसा ही स्लैब ले रहे हो, लेकिन इसको हाफ कर दिया है, तो ये दो एरिया हो जाएंगे A/2 A/2। अब इसमें बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आई करंट पास करता हूँ, सपोज कि यहाँ से अगर मैं आई करंट पास करता हूँ तो ये करंट आगे जाके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि I/2 और I/2 हो जाएगा, राइट। लेकिन इस हाल में भी यहाँ पे आप कोई भी स्लैब ले लो, ऊपर वाला या नीचे वाला स्लैब ले लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको V ही मिलने वाला है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ नीचे के स्लैब में आपको दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। ऐसा क्यों, ऐसा इस फिगर से आप समझ लीजिए। देखिए इस टोटल स्लैब में जब आई करंट पास हो रहा था तब इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था V, तो यहाँ भी आपको मिलेगा V, और अगर मैं चाहूँ तो ऊपर भी बता सकता हूँ, यहाँ भी मिलेगा आपको V। देखिए ये दोनों टर्मिनल बेसिकली तो एक साथ कनेक्टेड है ना, ये तो एक ही स्लैब की दो सरफेस हैं, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा V। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्लैब की बात करें, इस स्लैब की बात करें, तो इस स्लैब में करंट कितना जा रहा है अभी I/2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो फिर इसके लिए हम ओम्स लॉ ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V इजकल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि जो रेजिस्टेंस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ R2, और करंट कितना होगा इसमें, करंट होगा इसमें I/2।
तो फिर इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, R2 इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2V अपॉन I, यानी कि 2R। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसका रेजिस्टेंस कह रहा हूं, R2। देखिए ये जो नीचे का स्लैब है ना, हाफ एरिया वाला स्लैब, उसका रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूं R2, ठीक है। और ये R2 कितना आ रहा है, 2R आ रहा है। अब समझिए कि हमने इस स्लैब में क्या चेंज किया, ये जो नीचे का स्लैब है उसमें क्या चेंज किया, हमने इसका एरिया जो है वो हाफ कर दिया, A/2, बाकी पोटेंशियल वही रखा है V जितना, तो ऐसे में इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया। देखिए एरिया मैंने हाफ किया तो रेजिस्टेंस R2 जो है वो डबल हो गया। R2 कितना है, 2R। तो इसका मतलब कि अगर एरिया हाफ है तो रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। तो ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल रहे हैं कि भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में हमने देखा कि अगर लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस डबल है। इस केस में हमने देखा कि अगर एरिया हाफ है तो रेजिस्टेंस डबल है। सो एज ए होल हमें मिल रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इन दोनों को मिला के हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, हमारा कंक्लूजन आएगा कि यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, R is proportional to L upon A, where L is the length of the conductor, A is the cross sectional area of the conductor and R is the resistance of the conductor। अब इस इक्वेशन में से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इस इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि R is proportional to L upon A। अब इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम डाल देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा R इजकल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे ये जो रो है इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। रो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल बट नॉट ऑन द डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए। देखिए रेजिस्टेंस में हमने देखा था, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं हुई। समझ रहे हो आप। ऑब्जेक्ट आपने लेंथ उसकी बड़ी रखी या एरिया उसका कम रखा या कुछ भी किया तो उससे रजिस्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टिविटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस रजिस्टिविटी का इक्वेशन भी बना सकते हैं, रो इजकल टू आर ए अपॉन एल। समझ रहे हो ना, मैंने इस इक्वेशन में से रो को सब्जेक्ट बना लिया तो रो इजकल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो आप इसमें से समझ सकते हो कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए इसका यूनिट मैं लिख रहा हूं, ऑब्वियसली ओहम मीटर। समझिए आप, ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट होगा ओहम।
ये एरिया है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ है तो हो गया मीटर। तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओहम मीटर। तो रजिस्टिविटी का यूनिट याद रखिएगा, ये है ओहम मीटर। अच्छा, अब इस रजिस्टिविटी को लेके हम एक और इक्वेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जानते हैं एज पर ओम्स लॉ V इजकल टू हम आई आर लिख सकते हैं। अब इसमें R का ये इक्वेशन मैं डाल देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा ये इक्वेशन I रो L अपॉन A। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इजकल टू I अपॉन A एंड रो L। ठीक है, अब इसमें ये जो I अपॉन A है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, और इस करंट पर यूनिट एरिया को कहा जाता है करंट डेंसिटी J। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा V इजकल टू J रो L, where J is what? J is current density. Current density. Obviously, the equation is J is equal to I upon A, and so the unit will be, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट अपॉन एरिया है तो यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। सही है, करंट डेंसिटी का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये आप याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, और ये करंट डेंसिटी का इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसका मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम ऐसे किसी कंडक्टर में जिसकी लेंथ है सपोज कि L, ये L लेंथ का एक कंडक्टर है, और इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं सपोज कि V जितना। ये दो टर्मिनल हो गए, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V जितना। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जानते हो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सपोज कि करंट ऐसे पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव, और इस सिचुएशन में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो आप जानते हो कि इसमें हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं। हियर V विल बी इक्वल टू EL, याद है, ये हमने सेकंड चैप्टर से लिया हुआ इक्वेशन है। V इजकल टू ED पे से V इजकल टू EL। तो इन शॉर्ट कि यहाँ पे दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है अभी V जितना, लेंथ इसकी L है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा V इजकल टू EL। देखिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बात मैं बता दूं कि हमने चैप्टर 2 में ऐसा पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गए भाई? देखिए, चैप्टर 2 में हमने जो पढ़ा था उसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर डाल रहे थे और फिर कह रहे थे कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहाँ पे तो हमने बैटरी लगाई हुई है, और इस वजह से ये एंड पॉजिटिव, इस वजह से ये एंड नेगेटिव हो रहा है, और इस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव बनाने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं V इजकल टू EL। इसको मैं नाम दे देता हूं नंबर 2 इक्वेशन। अब नंबर 1 इक्वेशन भी V का ही था और 2 भी V का ही है, तो मैं कहता हूं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन 2 में V इजकल टू है ई एल, और इक्वेशन 1 में V इजकल टू क्या था, J रो एंड L। तो ऑब्वियसली इसमें से L कैंसिल हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा सिर्फ J रो, E इजकल टू J रो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे एक बात हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे ये जो J ले रहे हैं, J क्या है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होती है। एक और बात, यहाँ पे ये J वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ये E इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। रो तो रजिस्टिविटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली J की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन भी सेम होगी। अब मैंने अभी कहा आपको कि J की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख भी रही है। देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ये I करंट है, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। अच्छा, अब एक और बात, ये J यानी कि करंट डेंसिटी की डेफिनेशन तो वैसे हमने देख ली है, लेकिन अब उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं। देखिए करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, करंट पर यूनिट एरिया। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि J वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अब कहना पड़ेगा करंट पर यूनिट एरिया, एरिया विच इज परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द करंट, एरिया विच इज परपेंडिकुलर और से नॉर्मल टू द करंट। यानी कि अगर हम इसमें से पास होने वाले करंट की बात कर रहे हैं इस कंडक्टर में से, तो हमें यहाँ पे एरिया जो सोचना है वो ऐसे नॉर्मल टू द करंट सोचना है। ऐसा आप क्रॉस में नहीं ले सकते। आप क्रॉस में एरिया ए लेके ये करंट डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते, वो गलत होगा। आपको एरिया ऐसे करंट के नॉर्मल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, और फिर उसमें से जो करंट पास हो रहा है और ये जो एरिया है, इन दोनों का रेशियो यानी कि करंट डेंसिटी J होता है। चलिए अब एक और नई डेफिनेशन समझते हैं, और ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, और इसका इक्वेशन है 1/ρ, यानी कि रजिस्टिविटी का इनवर्स वही कंडक्टिविटी सिग्मा है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए रजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, रजिस्टिविटी का यूनिट था ओहम मीटर, तो ये हो जाएगा ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स। वैसे इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, मोह मीटर इनवर्स। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं मोह। देखिए इस सिंबल को कहते हैं हम ओहम, और इसको कहते हैं हम मोह। और इन दोनों का रिलेशन भी बड़ा सिंपल सा है कि मोह इज 1/ओहम। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ओहम का इनवर्स यानी कि मोह। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा, और इक्वेशन है 1/ρ, और इसका यूनिट है मोह मीटर इनवर्स। अब इस कंडक्टिविटी को लेके हम हमारा ये जो इक्वेशन है वो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अब इक्वेशन लिख रहा हूं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज J/सिग्मा, राइट, बिकॉज ये रो लिखा है तो रो इजकल टू 1/सिग्मा हो जाएगा। और फिर इसमें से आप J इजकल टू लिख सकते हो सिग्मा इंटू E। तो
ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम लगेगा। J इजकल टू सिग्मा इंटू ई। याद रहे J क्या है? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी किसी कंडक्टर पे आप बैटरी अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस होता है इसलिए इसमें करंट डेंसिटी मिलती है आपको। और क्योंकि करंट डेंसिटी है, करंट है, तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी भी होती है, तो ये कंडक्टिविटी भी आपको मिलती है यहाँ से। तो J इजकल टू सिग्मा ई इक्वेशन आप याद रखना। चलिए, तो इसके साथ ये टॉपिक तो यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस का सिंबल है G, और ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, यानी कि G इजकल टू 1/R। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, देखिए, ओम इन्वर्स ही होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, ओम इन्वर्स को क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, मोह। तो कंडक्टेंस का यूनिट हो गया मोह। चलिए, जरा एक बार मैं यहाँ पे आपको याद दिलवा दूं कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमने एक देखा रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस R का इन्वर्स यानी कि कंडक्टेंस। एक देखा हमने रजिस्टिविटी रो। रजिस्टिविटी का इन्वर्स यानी कि कंडक्टिविटी। आ रही बात समझ में? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस। ये रजिस्टिविटी और ये रजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।